हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड रीडिंग पैसेज। सीबीएसई ने क्लास 9th और 10th का सिलेबस चेंज कर दिया है एंड नाउ आपका जो सेकेंड पैसेज होगा उसमें आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मिलेगी और आपके सेकेंड पैसेज में आपको विजुअल्स मिलेंगे, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। तो आई वांट यू टू प्रैक्टिस इट लाइक दैट ओनली। ओके, सो लेट्स सी हियर। फर्स्ट पैराग्राफ। India's average temperature has already increased by around 0.7 degree. Okay, 0.7 डिग्री सेल्सियस से इंडिया का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ओके, पहले ही इंक्रीज हो चुका है। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। ड्यूरिंग द ईयर 1901 to 2018, इस पीरियड में due to greenhouse gas emissions, and by the end of 2100 it is expected to rise by approximately 4.4 degrees Celsius, warns the first ever climate change assessment report by the Indian government. Indian government ने बिल्कुल बता दिया है कि इतना पहले बढ़ चुका है और इतना बढ़ेगा और। Now, second, the report assessment of climate change over the Indian region prepared by the Union Ministry of Earth Sciences warned that the rapid changes in the temperature, अगर बेटा इतना ही rapid changes होंगे temperature में, would mean increasing stress on India's natural ecosystem. Natural जो हमारा ecosystem है उस पे इफेक्ट होगा, एग्रीकल्चरल आउटपुट उस पे इफेक्ट होगा और जो हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उस पे भी इफेक्ट होगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो फ्रेश वाटर भी सूखेगा। हर एक चीज डैमेज हो रही है, while also causing escalate is always बढ़ाना, damage to infrastructure. Okay, this ultimately means a serious impact on countries' biodiversity, food, water, energy, security, and public health. So please understand, this is the second reading passage जो हम अभी पढ़ रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं how to do it. Okay, now third, इसको थोड़ा सा increase कर सकते हैं, I think it will be more visible. It said that several regions in India are global biodiversity hotspots with numerous endemic species of plants and animals, and with the climate changing more rapidly than the usual, they may face increasing threats on account of these changes. और इन changes की वजह से जो भी हमारे flora and fauna है और इतने खूबसूरत species of plants हैं वो सब इफेक्ट हो जाएंगे। ओके, अच्छा, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपको नहीं मिलेंगे रीडिंग पैसेजेस में अब। ओके, दैट्स अनदर चेंज, दैट्स अ पॉजिटिव चेंज फॉर यू गाइस। द मॉइस, ऊपर आपको हमने इसका फुल फॉर्म दिखाया था, रिपोर्ट cautioned, that means they have cautioned that by the end of 2100 the frequency of summer, April to June जो summer होती है, heat waves over India is projected to be 3 to 4 times higher, 3 से 4 गुना और बढ़ जाएगी गर्मी, एंड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव इवेंट्स इज आल्सो प्रोजेक्टेड टू अप्रोक्सीमेटली डबल। तो अब हीट वेव अभी सिर्फ दोपहर में जैसे चलती है, मान लो हम कहते हैं नहीं नहीं बेटा दोपहर में लू चल रही है बाहर मत जाओ, वो भी डबल हो जाएगी, उसका टाइम स्पैन भी बढ़ जाएगा बेटा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द सी surface temperature SST of the tropical Indian Ocean has also risen by 1 degree Celsius on average during 1951 से 2015. इसका भी 1 degree Celsius बढ़ गया है. Now, the rise in temperature is playing havoc with India's rainfall, which is significant for India's agriculture sector. जो बारिश पे भी इसका इफेक्ट हो रहा है बहुत बुरा, और बारिश तो हमारा जो मेन काम है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, वो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो रहा है हमारा इसकी वजह से। द रिपोर्ट नोटेड दैट द समर मॉनसून precipitation June to September over India has declined by around 6% from 1951
टू 2015, ये जो मॉनसून में प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन आपको पता है ना, जब आप पानी ऊपर जा रहा है, आप भी जैसे आप पसीना स्वेट आता है, वैसे ही ट्रीज का जब पानी उड़ता है तो भी हम प्रेसिपिटेशन यूज करते हैं। साइंस में एक और टर्म होता है प्रेसिपिटेशन, with notable decreases over the Indo-Gangetic Plains and the Western Ghats. It stressed that the overall decrease of seasonal summer monsoon rainfall during the last 6 to 7 decades has led to an increased propensity for droughts over India. और अगर बारिश इसी तरह कम हो गई तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत ही बुरी तरह ड्रॉट्स का माहौल बढ़ गया है। 6-7 decade. One decade means 10 years, 60-70 years में. In particular, areas over central India, southwest coast, southern peninsula and northeastern India have experienced more than 2 droughts per decade. और 2 droughts वो लोग experience कर रहे हैं, in fact more than 2, एक decade में, 10 सालों में. The area affected by drought has also increased by 1.3% per decade over the same period. Climate model projections indicate a high likelihood of an increase in the frequency, intensity, and area under drought conditions in India by the end of the 21st century, said the Moist report. Moist report के हिसाब से things are going to be really difficult. और जिस तरह से मैंने आपको बताया था, you're going to see, okay, either एक ग्राफ आ जाएगा, कोई पिक्चर आ जाएगी, कोई ना कोई चीज आपको मिलेगी इस सेकंड पैराग्राफ में. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. 10th में एक अच्छी बात है कि आपको 12 ऑप्शंस मिलते हैं और आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं 9th और 10th में, मगर 12th में आपको सिर्फ 11 क्वेश्चंस मिलते हैं एंड आप सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो. तो हम पहले छोड़ने का नहीं सोचते हैं, वी विल ट्राई एंड सॉल्व इट. ओके, नाउ पहले आप सब लोग अपनी कॉपीज में यू आर गोइंग टू राइट द ऑप्शन विच यू थिंक. सम ऑप्शंस के लिए यू कैन रिक्वेस्ट मी टू गो बैक टू द रीडिंग पैसेज, आई एम हियर. ओके, एंड देन हम आंसर्स एंड में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑनलाइन जो बच्चे इसको कर रहे होंगे उनको तुरंत आंसर वरना पता चल जाएगा. सो वी आर गोइंग टू गिव द आंसर्स, ओके, इन द एंड. According to the passage, what is the cause of the rise in temperature? Emission of greenhouse gases, destruction of the natural ecosystems, over exploitation of the natural resources. All of these. टेम्परेचर राइज क्यों बढ़ा? क्विकली मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं फटाफट फर्स्ट पैराग्राफ में इसको फर्स्ट क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करूंगी. I'm gonna try and find out क्यों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. व्हाट इज द रीजन? राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन. डन? ओके. Which organization warned about the rapidly changing temperature? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको वार्न किया, cautioned? हमने एक वर्ड पढ़ा था वार्निंग के लिए, cautioned. कौन थी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने कॉशन किया? क्या था उसका फुल फॉर्म? आई थिंक सो आपको मिल गया होगा. और उसका फुल फॉर्म क्या है? सेकंड क्वेश्चन वाज गुड, सेकंड पैरा में मिल गया मुझे. वाओ, till now good. Let's go to the third one. What did the report assessment of climate change highlight? क्या चीज उसने हाईलाइट की? Increase in burning of the fossil fuel, stress on India's natural ecosystem, impact on public health, increased heat wave. अब आपको दो चीजें आपने इसमें पढ़ी थी, नेचुरल इकोसिस्टम्स भी पढ़े, हीट वेव भी पढ़ी, पर आपको बताना है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज. रिपोर्ट जो थी उनकी रिपोर्ट में क्या है? सो फाइंड आउट द रिपोर्ट ऑफ असेसमेंट क्लाइमेट चेंज ने क्या बताया. जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे वो
स्टार्टिंग में, या इसको पॉज कर सकते हैं, यू कैन जस्ट पॉज इट. कहीं पे भी आपको जहां वर्ड लगता है, रिपोर्ट है, आप वहां उसको पॉज कर सकते हैं ऑनलाइन वीडियो को, एंड देन जस्ट यू कैन रीड इट. और फिर वो रिपोर्ट क्या बताती है, यू कैन जस्ट डू दैट. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा हुआ लगेगा आपको. Now let's go to the fourth one. What is threatened by the rapidly changing climates? Global biodiversity hotspots, countries' biodiversity, infrastructure, या both A and B? Climate change से, rapid climate change से क्या threat होगा? What is the threat? बहुत सारे बच्चों ने डायरेक्टली आंसर लिख लिया होगा. What is the threat? जहाँ पे भी आपको वर्ड्स मिलते हैं, कंट्रीज, बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे पॉज करके यू कैन रीड. बाकी बच्चे अभी रीड कर लेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द टेम्परेचर राइज अफेक्ट द समर हीट वेव्स? दिस इज वेरी इजी. समर हीट वेव्स को वो क्या करेंगे? डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज करेगी. You can write down the option. फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन इंक्रीज होगा. क्या इंक्रीज होगा? कुछ चीजों में जहां डिक्रीज है वो तो आप सीधा ही काट सकते हो. यू कैन जस्ट स्ट्राइक आउट डिक्रीज. डिक्रीज को सीधा काट दिया है ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. दो चीजों में यू हैव टू जज. According to the given passage, the SST of the tropical Indian Ocean has, SST क्या हुआ था? Reduce, remain the same, risen या fluctuates? ये आपको बहुत क्लियरली पता होगा. किसी को नहीं पता है तो मैं रीडिंग पैसेज तुरंत दिखा दूंगी. प्लीज लेट मी नो. 7th, in the line a serious impact, the word impact does not refer to. impact का क्या मतलब है? क्या मतलब नहीं है? This is very important in class 9th and 10th. Does not refer to. According to the passage. Now let's go to this word in the passage, guys. है ना, इस passage को पढ़ते हैं जरा. A serious impact कहाँ है? Can anyone tell me? Second paragraph. पहले आप लोगों को पैराग्राफ्स दिए जाते थे एग्जैक्ट की कहाँ है. ओके, बट अब ऐसा नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिपल एस. ये भी क्वेश्चन था हमारा इससे पहले वाला. मेरे को तो अभी तक नहीं दिख रहा है सीरियस इम्पैक्ट. किसी को मिला? From second paragraph, last. Second paragraph, last line. Last line, serious impact Yeah, on yeah, countries' yeah. biodiversity. Right. This is the serious impact. So what do you think is the meaning of this? This ultimately means a serious impact. क्योंकि उन्होंने क्या बताया था मोइस ने? नेचुरल इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर आउटपुट, फ्रेश वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर सब डैमेज हो जाएगा.
तो एक बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट होगा हमारी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी में, फूड पे, वाटर पे, एनर्जी पे और पब्लिक हेल्थ पे। तो ये सीरियस इम्पैक्ट होगा, असर डालने वाला है। सो व्हाट आर द वर्ड्स व्हिच यू आर गोइंग टू यूज? और आपको यूज करना है, एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग ये नहीं है। इन्फ्लुएंस, फोर्स, collision or effects. Based on your understanding of the passage, choose the option that lists the social and economic impact of climate change. अब क्या है ये आपका आया है उस चार्ट से। लेस कैपेसिटी टू वर्क होगा, इंक्रीज इन कार पूलिंग होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट या डिस्कवरिंग क्योर्स होगा, लॉस ऑफ लोकल स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना होगा, लॉस ऑफ लैंड होगा। अब इसमें बेटा आपको दो चीजें ढूंढनी है ना। अब ये क्वेश्चंस आपको पहले नहीं आते थे, या आपके अकॉर्डिंग 1 एंड 2 है ऑप्शन। थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर, दोनों चीजें आपको दिखेंगी। यस, आपके हिसाब से क्या दोनों है, 1 एंड 2 होगा? आपके हिसाब से 3 एंड 4 होगा? आपके हिसाब से 5 एंड 6 होगा? या आपके हिसाब से 1 एंड 6 होगा? इसको ऊपर लेके जाते वक्त मैं एक और चीज आपको बोलूंगी देखने के लिए। राइज इन टेम्परेचर इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन, कैसे अफेक्ट किया है ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, प्रेसिपिटेशन को रिड्यूस किया है, फ्लक्चुएट किया है, इंक्रीज किया है या नो इफेक्ट किया है। सो लेट्स गो बैक। सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमको यहाँ दिख रहा है। अभी तक आप सोच रहे होगे मैम ये क्यों दिया है? The cost of adapting sea levels, loss of the capacity to work due to heat, more wars to gain access to limited resources. ज़्यादा झगड़े होंगे क्योंकि limited resources हो जाएंगी. Fresh water in short supply in some area. Relocation of whole towns, और कुछ towns में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो relocate हो जाएंगे. Shrinking productivity of harvest. Prices of basic foodstuff and consumer goods will rise. पैसा आज जो आप खाना खरीद रहे हो 2000 में, वो शायद 10,000 का हो जाएगा। एक्सट्रीम मीटियोरोलॉजिकल फिनोमेना विल कॉज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ये मीटियोर्स जो होते हैं, जो पड़ते हैं अपने आप टूटते हैं, वो हो जाएगा। डिजीजेस विल स्प्रेड ड्यू टू हायर टेम्परेचर्स, डिजीजेस स्प्रेड होंगे। ये है सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब आप चूज कर पाओगे। ओके, now let's go. Precipitation word. Okay, precipitation word को हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। प्रेसिपिटेशन के साथ मैं चाहती हूँ कहाँ कहाँ और डिक्रीज हुआ है, या यहाँ पे, या डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। मैं चाहती हूँ आप ये दो नाम भी पढ़ लें। रीड दिस पैराग्राफ। राइज इन टेम्परेचर इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बुरा है। समर मॉनसून प्रेसिपिटेशन ओवर इंडिया हैज डिक्लाइन। डिक्लाइन मींस डिक्रीज, और ये दो प्लेसेस का नाम भी बताया गया है। सो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट आई होप आपने पढ़ लिया ये वाला। Ma'am, can you one show question 2 and 3 again? Question number 2 and 3. Okay, once I'll go back then I will show you, don't worry. First you do the 8th one. Less capacity to work. अगर आपको एक भी मिल जाता है ना कि यार ये 1 तो है, तो अब आपको फिर 1 वाले ऑप्शंस को ही देखना चाहिए। And then you should compare 1 with 6 or 1 with 2. या आपको अगर मान लो 3 मिल जाता है, तो you have to decide that way, okay?
rise in temperature affected precipitation. उसने क्या किया है? No effect, reduce, fluctuate या increase. According to the passage, which region's rainfall was adversely affected? दो places के नाम बड़े clearly आपको दिख गए होंगे. Now 10 questions आपके हो चुके हैं जितना आपको करना था. अब अगर आपके ये दो क्वेश्चंस आपको लगता है कि मेरे को क्लियर नहीं है, तो वो दो क्वेश्चंस को आप हटा के ये दो क्वेश्चंस करेंगे बेटा. Choose the option that is not true for the given passage. Be very careful. There is a threat to the biological hotspots. The climate change has deeply impacted Indian rainfall patterns. Droughts have reduced in the country. Droughts कम हो गई है. क्या not true है? Yeah, the greenhouse emissions are expected to rise by 4.5 degrees Celsius. It's a very easy question. And I think मैं 11th वाला जरूर करती. क्योंकि जहां पे भी क्वेश्चंस होते हैं ना 1 और 2, 2 और 3, 4 और 5, वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो उन क्वेश्चंस को छोड़ देना. या क्वोटेशंस आ गए मान लो, उस क्वेश्चन को छोड़ देना. ट्राई कि दूसरा अगर इजी मिल रहा है तो. What warning has the MOIS issued in 2100 India? क्या वार्निंग है? बड़े क्लियरली हमको पता चलती है. That the country's biodiversity will be reduced by 50%, that the intensity of heat waves projected to triple, that rainfall is going to the drastical decline, that there will be an increase in the intensity and frequency in drought. मोइस ने क्या कहा है? ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हो रहा है पैसेज में. But we are going back. Moise ने क्या कहा है? You have to take care of that, guys. Okay. Let's go. First and second question. Kiranya wanted to see. What is the cause of the rise in temperature, Kiranya? Or which organization warned? Ma'am, second and third. Second, okay. Which organization warned about the rapidly changing temperature? किसने बताया? Ma'am, B. We will see that. What did the report assessment of climate change highlight? क्या चीज climate change के बारे में highlight की रिपोर्ट ने? ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी इस ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने कौन से climate change के बारे में highlight किया? So I hope you I'm have done. understood the passage. तो बाकी जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो इस पैसेज को रीड कर सकते हैं दोबारा. So thank you so much. The answers are given in the description box. I hope you like this video of reading passage. All the best for your board exams. Bye. See ya.